Good evening, guys. This is me, Asit Kumar Yadav, and we have started chapter number 3, that is human reproductions, and this is the continuity series of that chapter. And we have completed 2 lessons, and this is the last chapter, last lesson. In this lesson, we will complete chapter number 3, human reproductions, and after tomorrow, and we will discuss notes of the chapter, and then after we will discuss the then after the notes will completed, then we will discuss chapter number 3, that is notes of that chapter, and then exercises will be completed, then we will move to the next chapter. Thanks all. Thanks. And if you are new my channel, then please share my videos, like my videos, and subscribe my channel to be updated. Thanks for coming to this video. Let's start. As I told you earlier, we have completed 2 lectures of this topic, human reproductions. Now this is the 3rd lecture, and if you had not listened my first 2 videos, then I will provide you the link in the description box from where you can watch my videos. Now let's start today's what we have to look today's, that is male reproductive system has completed, female reproductive system completed, gametogenesis, menstrual cycle, and already completed menstrual cycle. And now today we will start from fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, then parturition and lactations. Now let's see what we have to learn today. That we have completed these topics, and yesterday there are some diagrams that are left, and now today we will first start with the diagrams that were left yesterday. This is the diagrammatic representation of a diagrammatic sectional view of mammary gland. We have to discuss this diagram because this diagram was left yesterday. I could not remember it as yesterday, sorry for that. Now let's see what is in diagram. And I have already discussed about the mammary gland, and today we will just discuss the diagram of this mammary gland, and then we will move to the next, that whatever with the there is ribs. Then you have to look at the diagram and you have to practice the diagram at your own pen and papers, because if in the examination there is question comes that is represent diagrams by represent the diagram of mammary gland, then you have to draw this diagram, and then you will fetch the marks. Then whatever will, then if you not draw the diagram, then you will lose your marks in the examination. So please practice the diagrams in your own notes. Then let's start. This is ribs, whatever with the red color, that is in the ribs, and there is muscles between 2 ribs, and petrioles, major muscles, and there is areola, nipple, lactiferous duct, ampulla, mammary duct, mammary avulus, mammary lobe, fat. Then I have already taught you about these points. Then you have to see yesterday's videos, then you have to see this diagrams analysis. And let's move next. What the next? And this diagram was also left, that is diagrammatic sectional view of a seminiferous tubule, that is enlarged. And now today we will discuss this. And this is the sperm that come in contact with the zygote, that come in contact with the ovum, that is the female gamete, and then fertilization takes place, that the formation of new gamete takes place, new zygote takes place, that is in seminiferous tubules. It is a seminiferous tubules. And what is seminiferous tubules? The male reproductive structure in which the formation of gametes takes place is called seminiferous tubules. Seminiferous tubules is the part in which the formation process of male gamete takes place, that is in the testes. Now let's see the structure. Whatever is the structure included in this is spermatozoa, secondary spermatocytes, primary spermatocyte, Sertoli cell, spermatogonia. And we have seen that spermatogonia develops into Sertoli cell, then primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, then spermatid, that is the spermatozoa, and this is which is called the sperm, which is the male gamete cell. Now this is the structure, and this is structure however not come in the examinations, but we have to we have to practice the diagram of seminiferous tubules, that is this. And whatever if it come in the examination, then you will have to draw this diagram and then have to fetch the marks. Now let's move to the next. And we have completed this diagram, that is structure of sperm. And now let's move. We have already completed this diagrams also, and this table was also completed, menstrual cycle, and this diagram was also completed of the menstrual cycle, in which we see that LH and FSH goes high at the middle of the cycle, which is the 14th day of the menstrual cycle. And we have already seen the menstrual cycle. And today we will start from the fertilization and implantation. Today we will start from this
their fertilization and implantations. During copulation, that is the coitus or first copulation between male and female, which is called copulation. During copulation, semen is released. It means that during copulation, semen is released by the penis into the vagina. Insaminations. The process of releasing of semen into the vagina of the female sex or female partners is called insemination, which means हिंदी में बोलते हैं अब। देखिए ये क्या होता है कॉपुलेशन, यानी कि जो पहला क्वाइटस होता है कॉपुलेशन होता है, उसमें क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होता है सीमेन रिलीज होता है, विच इज स्पर्म कहते हैं जिसको हम लोग। वो कहाँ रिलीज होता है, सीमेन किससे रिलीज होता है, रिलीज्ड बाय पेनिस, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव मेल कॉपुलेशन और कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज कॉल्ड पेनिस एंड विच इज रिलीज इनटू द वेजाइना। वेजाइना में रिलीज होता है, वेजाइना इज द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन किसको बोलते हैं, semen released by penis into the vagina of the female partner is called insemination. The motile sperm swim rapidly और sperm क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूविंग होता है, हम पहले ही बताए थे। पासेस थ्रू द सर्विक्स से होते हुए इंटर्स इनटू द यूटेरस, जो कि गर्भाशय तक पहुंच जाता है एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ द स्टमस। कहाँ पहुंचता है, फाइनली जंक्शन स्टमस जंक्शन पे पहुंच जाता है एंड एम्पुला और एम्पुला तक पहुंच जाता है, जिसको क्या बोलते हैं एम्पुलरी स्टमस जंक्शंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब के कहाँ पहुंच जाता है, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन तक। अब देखते हैं आगे। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी स्टमस जंक्शंस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और ओवम भी होता है जो वो कहाँ रिलीज होता है, रिलीज किससे होता है, ओवरी से रिलीज होता है और कहाँ तक पहुँचता है, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन तक, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन फीमेल मेंबर्स वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। देन नेक्स्ट, that is fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary stomach junctions. फर्टिलाइजेशन कब अकर होता है, जबकि मेल और फीमेल गैमेट्स इम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंचते हैं सिमुल्टेनियसली, मतलब एक साथ पहुंचते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ये नहीं होगा कि मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव मेल स्पर्म पहुंच गया और फीमेल स्पर्म मतलब फीमेल ओवम अभी तक पहुंचा ही नहीं, देन देयर इज़ नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इफ द मेल एंड द फीमेल gamete reach the ampullary stomach junction simultaneously, it means at the same time both the gametes reach at the ampullary stomach junctions, then the fertilization occurs. This is the reason why not all copulation lead to the fertilization and pregnancy. इसी के कारण है कि मतलब every copulation which means the when male and female copulates then every copulation do not lead to the fertilization and pregnancy. इसलिए होता है कि जब हर एक बार क्वाइटस होता है तो वो हमेशा फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और मेल गैमेट क्या होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं, और जो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन होता है उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलिसुडा लेयर ऑफ द ओवम। और देखिए यहाँ जोना पेलिसुडा का लेयर है, यहाँ स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग। देखिए ये ओवम का स्ट्रक्चर है, सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म से सराउंडेड है। देख लेते हैं, देखिए जोना पेलिसुडा है, ये लेयर है और इसी से ये स्पर्म आकर कांटेक्ट करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलिसुडा के कॉन्टैक्ट में आता है एंड इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। और जो एडिशनल स्पर्म यानी कि एक अगर स्पर्म इसमें कंटेक्ट हो गया, एक स्पर्म का कंटेक्ट हो गया तो बाकी स्पर्म कंटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बंद कर देता है, इसका इंटरेंस बंद हो जाता है और बाकी सब स्पर्म रिड्यूस हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक रिजेनरेट होकर वापस चला जाता है। that comes out of the vagina through cervical canal and it's lead to the fertilization of only one sperm with an ovum. देखते हैं does it ensure that only one sperm can fertilize an ovum. इसलिए जैसे बताया हमने कि एक ही स्पर्म इसमें फर्टिलाइज होता है। The secretion of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida. और जो secretion of acrosome क्या होता है, head of the sperm, structure of sperm हम बताए थे, head of the sperm is called acrosome. acrosome में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। तो secretion of
एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलिसुडा। कोई एक्रोसोम के कारण ही जो रिएक्शन होता है इसमें जोना पेलिसुडा और एक्रोसोम में, इसी के कारण जो फर्स्ट स्पर्म आता है जो इंटर करता है किसमें, ओवम में। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देख लेते हैं क्या क्या होता है। जोना पेलिसुडा होता है, फिर क्या होता है जो आउटर लेयर होता है इसमें, देखिए आउटर लेयर जो ये है वो सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा होता है। एंड इन द इंटीरियर पोर्शन दैट इज द ओवम विच इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स, दैट इज जोना पेलिसुडा इज द फर्स्ट लेयर एंड द सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा इज द सेकेंड लेयर। एंड देयर इज ऑल्सो ए लेयर दैट इज प्रीविटेलाइन स्पेस विच इज कॉल्ड प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, द प्लाज्मा there is that the plasma membrane, this induce the completions of the meiotic division of the secondary oocyte। इसी के कारण क्या होता है, मियोसिट सेकेंडरी oocyte का डिवीजन होता है। सेकेंडरी meiotic division is also unequal and result in the formation of secondary polar body and haploid ovum that is otid। और उसमें सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है, यानी कि दोबारा म्यूटिक डिवीजन होता है जिसमें अनइक्वल रिजल्ट होता है, यानी कि इक्वल रिजल्ट नहीं होता है किसी का, मतलब अनइक्वल रिजल्ट होता है इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। जो सेकेंड पोलर बॉडी होता है और उसमें हैप्लॉइड ओवम होता है जिसको कि हम लोग ओटिड बोलते हैं। हैप्लॉइड ओवम को क्या बोलते हैं, ओटिड बोलते हैं। सून the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। और देखिए हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ओवम का भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब मिलते हैं। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है मेल का और ये क्या है, फीमेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी एन ये और एन ये, और दोनों मिलकर फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ क्या बनेगा 2n, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। दैट इज जाइगोट क्या होगा, डाइप्लॉइड होगा, क्योंकि n और n मिलेगा तो क्या बनेगा 2n बनेगा, कंपलसरी है 2n बनेगा ही, तो इसलिए 2n क्या बोलेगा, ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है। अब आगे देखते हैं, एज बी नाउ द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड इन द मेल इज XY। जैसे कि हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे कि मेल में क्या होता है XY एंड फीमेल में क्या होता है XX होता है। मेल का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है 22 पेयर्स प्लस XY एंड फीमेल का होता है 22 पेयर्स प्लस XX। Therefore, all the haploid gametes produced by the female ova have the chromosome X, whereas the male gamete में sperm the sex chromosome could be X और Y। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर फीमेल का X और X है क्रोमोसोम, तो अगर किसी भी हालत में अगर उसमें से क्रोमोसोम नंबर हाफ डिवाइड होगा तो किसी में क्या होगा, दो हाफ डिवाइड हो गया, इसमें या तो X रहेगा या तो X रहेगा, यानी दोनों कंडीशन में केवल X ही रहेगा। और इसी प्रकार अगर मेल में देखें तो मेल में क्या होता है X और Y होता है, X और Y होता है। अगर इसका हम लोग डिवाइड करते हैं दो हिस्सा में, अगर इसका हम लोग इसको दो हिस्सा में डिवाइड करते हैं इसमें क्या होगा, एक कंडीशन में X होगा और दूसरा कंडीशन में Y होगा, जबकि फीमेल में क्या होता है, एक कंडीशन में X होता है दूसरे कंडीशन में भी X ही होता है। आगे देखते हैं, देखिए मेल में क्या होता है 50% X होता है 50% Y होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है 100% X ही होता है। आगे देख लेते हैं, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट विल कैरी XX और XY। अब देखिए मेल गैमेट में क्या होता है, मेल गैमेट में होता है X और Y, और फीमेल में क्या होता है X और X। अगर इससे X और X निकलेगा, अगर इससे भी X निकलता है और इससे भी X निकलता है तो क्या फॉर्मेशन होगा XX। अगर इससे Y निकलता है इससे तो X निकलेगा ही निकलेगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा X और Y फॉर्मेशन होगा। अब देख लेते हैं आगे क्या कहता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट विल कैरी आइदर XX और XY। देखिए जाइगोट क्या कैरी करेगा, XX कैरी करेगा या फिर XY कैरी करेगा। वेदर द स्पर्म कैरी X, किसको हटाना पड़ेगा, वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। अगर स्पर्म में X फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा XX होगा, अगर स्पर्म Y फर्टिलाइज करेगा Y से तो क्या बनेगा X और Y, क्योंकि X तो किसका है, X तो फीमेल का है, तो फीमेल में हमेशा तो हर एक कंडीशन में तो X ही निकल आएगा, तो इसलिए XX और XY दो कंडीशन बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, दैट इज द जाइगोट। द जाइगोट कैरिंग XY विल डेवलप इनटू ए फीमेल बेबी। अगर XX रहता है जाइगोट का, अगर मेल भी X निकालता है और फीमेल का भी X आता है, फीमेल का तो X आएगा ही आएगा, तो क्या बनेगा, ये फीमेल मेम्बर बनेगी, फीमेल चाइल्ड बनेगा, फीमेल चाइल्ड। अगर फीमेल तो X ही निकलेगा, अगर पेरेंट्स यानी कि क्या कहते हैं फादर से मतलब मेल से यानी Y क्रोमोसोम आता है तो क्या बनता है यहाँ पे मेल चाइल्ड बनता है, यानी कि मेल बेबी बॉर्न होता है। दिस इज़ वाई, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे मोर अबाउट इन द क्रोमोसोमल पैटर्न चैप्टर 5 में इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।
आगे देखते हैं, दैट इज़ वाई सिग्निफिकेंट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। इसलिए कहा जाता है कि यानी कि सेक्स मतलब बेबी यानी कि जो भी बेबी होता है तो उसका मतलब सेक्स यानी कि वो मेल होगी या फीमेल होगी, जो आने वाला फ्यूचर बेबी होगा तो उसे क्या किस पर डिटरमाइन करता है ये, इट टोटली डिपेंड ऑन द फादर नॉट ऑन द मदर। ये टोटली डिपेंड किस में होता है, फादर पर डिपेंड होता है, क्योंकि फादर ही दो टाइप का गैमिट फॉर्मेशन करता है, दैट इज एक्स एंड वाई, एंड मदर्स इन एवरी कंडीशन दैट फॉर्म द गैमिट दैट इज वाई एक्स एक्स। क्योंकि फीमेल में तो हमेशा एक्स एक्स रहता है, तो क्योंकि हर एक कंडीशन में या फिर डिवाइड भी होगा एक्स और एक्स, तो क्या फॉर्म करेगा, तो एक्स एक्स अगर इसमें भी आएगा तो एक्स, इसमें भी आएगा तो एक्स ही रहेगा। लेकिन मेल में अपोजिट है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों होता है, एक कंडीशन में एक्स फॉर्म करता है, एक कंडीशन में वाई फॉर्म करता है, तो यानी कि इसमें डबल चांसेस है, यानी कि एक्स भी फॉर्म कर सकता है या फिर वाई भी फॉर्म कर सकता है। अगर एक्स फॉर्म करता है तो क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड, एक्स फॉर्म करेगा तो फीमेल चाइल्ड बनेगा, और एक्स वाई फॉर्म करेगा तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि यानी कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द पेरेंट्स दैट इज द फादर नॉट बाय द मदर। आगे देखते हैं, द म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड द यूटेरस। और म्यूटिक डिवीजन कब स्टार्ट होता है जाइगोट में, जबकि जाइगोट मूव्स थ्रू द स्थमस से कहाँ मूव करता है, ओविडक्ट, जिसको क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, टुवर्ड द यूटेरस। यूटेरस मतलब गर्भाशय तक में, मतलब यहाँ जाइगोट क्या कहाँ डेवलप होता है, एम्पुलरी स्थमा जंक्शन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का डेवलपमेंट हुआ, वहीं पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, और वहाँ से वो मतलब क्लीवेज नहीं होता है वहाँ पे, वहाँ से जब वो चल देता है, यहाँ कहाँ तक चल देता है, वहाँ से वो मतलब जब यूटेरस तक जाने लगता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, क्लीवेज होता है, और जो ही टुवार्ड्स द यूटेरस यानी कि गर्भाशय की तरफ जाने लगता है। एंड फॉर्म्स, और क्या बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डाउटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। देखिए जाइगोट तो बना एक सेल बना उसमें, क्योंकि मेल और फीमेल मिला तो एक सेल बना, तो इस सेल को क्या बोले हम लोग, जाइगोट बोले। और जाइगोट में क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है, और इसमें क्या बनता है, 1 से फिर 2 होगा, 1 से फिर ये कि 2 हुआ, फिर 2 से फिर इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, यानी 4 होगा, फिर 4 से फिर 8 होगा, 8 से 16 होगा, इसी प्रकार डिवाइड होता रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16, जिस एम्ब्रियो में 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। जिस एम्ब्रियो में 8 से लेकर के अगर 16 तक होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोरुला बोलते हैं। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसाइट, और मोरुला कंटिन्यूस डिवाइड यानी कि वो डिवाइड होते रहता है, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, 32 से 64 होगा, 64 से 128 होगा, 128 से 256 होगा, इसी प्रकार मतलब डिवाइड होते रहता है एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस। और डिवाइड होते कहाँ डिवाइड होते रहेगा और कहाँ मूव करेगा, यूटेरस में, यूटेरस यानी गर्भाशय में मूव करते रहता है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसाइट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ब्लास्टोसाइट होता है जो ब्लास्टोमियर्स होता है, जो ब्लास्टोसाइट में वो अरेंज किस में होता है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट, एंड एन इनर ग्रुप सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द इंडोमेट्रियम। और जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होता है वो कहाँ अटैच हो जाता है, इंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो गेट अटैच टू द इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और जो इनर सेल मास होता है, जो इनर लेयर होता है वो किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, यानी डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आफ्टर अटैचमेंट के बाद द यूटेराइन सेल डिवाइड रेपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसाइट। और जो यूटेराइन सेल यानी कि यूटेरस के सेल होता है जो वो डिवाइड मतलब जल्दी रेपिडली तेज़ी से डिवाइड होता है और कवर द ब्लास्टोसाइट, और ब्लास्टोसाइट को कवर कर लेते हैं। यानी कि इसमें जो ब्लास्टोसाइट आएगा तो और यूटेरस का सेल जो डिवाइड करके इसमें कवर कर लेता है। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसाइट बिकम इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। और इसके दौरान क्या होता है, ब्लास्टोसाइट इम्बेडेड होता है इन द इंडोमेट्रियम, जो कि यूटेरस यानी गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में इम्बेडेड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। और इसी कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी यानी कि फीमेल क्या होता है, गर्भावस्था में चली जाती है। चलिए आगे इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम रह गया हम लोग का, और देख लेते हैं इसमें डायग्राम। देखिए ये क्या हुआ, ये मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ फ्यूज़न हुआ। ए नंबर में देखिए फीमेल गैमेट है, दैट इज़ क्या है, ओवम यहाँ फ्यूज़ हुआ। फिर यहाँ जाइगोट बनने लगा, डबल सेल यानी 2n स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ 2 से 4 बना, 4 से 8 16, इसको 16 से क्या हो गया, 8 से 16 को क्या बोलते हैं, 8 to 16 उसको मोरुला बोलते हैं। यही मोरुला हुआ। फिर मोरुला इज़ गेटिंग डिवाइडेड एंड दैट इज़ देयर, वी हैव टू सी दैट इज़ मोरुला इज़ देयर एंड दैट इज़ एम्पुलरी स्थमस जंक्शन एंड इट लीड्स मूविंग टू द यूटेरस, दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द
uterus, and it's lead to the formation of the progeny, that is called the newborn baby, that is fetus. If the parent contains XX, that is called the girl child, and if the parent contains XY, then it's lead to the formation of male child. Now let's move to the next, and then next is the pregnancy and embryonic development. Then we will see the pregnancy. After implantation, finger like projection appear on the trophoblast called chronic villi. इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर होने लगता है ट्रोपोब्लास्ट सेल में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोनिक विल्ली, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, जो कि यूटेराइन टिश्यू से सराउंड रहता है, एंड मटेरियल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड, और मैटरनल ब्लड से सराउंड रहता है. द क्रोनिक विल्ली एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिएटेड, और जो क्रोनिक विल्ली होता है और यूटेराइन टिश्यू होता है क्या होता है, इंटरडिजिएटेड होता है किससे, ईच अदर, यानी कि आपस में इंटरडिजिएटेड हो जाता है, एंड ज्वाइंटली फॉर्म ए structural and functional unit between developing embryo fetus and maternal body called placenta. और क्या होता है, ज्वाइंटली फॉर्म है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और जो इसमें क्या होता है, ज्वाइंट करके क्या बनाता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाता है, किसमें, बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल बॉडी. और इसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में और मैटरनल बॉडी में क्या बनाता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाता है. इसको क्या बोलते हैं, उसको प्लासेंटा बोलते हैं. फिगर नंबर 3.12 हम लोग आगे देखेंगे, प्लासेंटा के बारे में यहाँ दिया हुआ है, प्लासेंटा देखेंगे. चलिए आगे देखते हैं. द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो. और प्लासेंटा क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो. प्लासेंटा फैसिलिटेट यानी कि वो क्या कराता है, क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है किसको, एम्ब्रियो को. एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो. और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो कि बेबी डेवलप होता है उसमें जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको क्या करता है, उसको रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट. और जो बेबी डेवलपिंग एम्ब्रियो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसका, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको रिमूव करता है. द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिकल कोड. और प्लेसेंटा किससे कनेक्ट करता है, एम्ब्रियो से, किसके द्वारा, अम्बिकल कोड के द्वारा. विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो कि क्या किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट का, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. एंड टू एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. प्लासेंटा एक्ट एज एन इंडोक्राइन टिश्यू. प्लासेंटा किस चीज़ तरह एक्ट करता है, इंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है. एंड प्रोड्यूसेस, और क्या प्रोड्यूस करता है, सेवरल हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. डेट इज़ ह्यूमन क्रोनिक हार्मोन, जिसको हम लोग HCG कहते हैं. जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग HCG कहते हैं. और ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन जिसको हम HPL कहते हैं. एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, एक्सेट्रा. और ये सब हार्मोन किससे सिक्रेट हो रहा है, प्लासेंटा से. आप लोग याद रखिएगा, HCH, HCG, HPL और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे सिक्रेट होता है, दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द प्लासेंटा. प्लासेंटा इज एक्ट एज एन इंडोक्राइन टिश्यू. प्लासेंटा किसकी तरह एक्ट करता है, इंडोक्राइन टिश्यू की तरह. इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर मतलब आगे फेज में क्या होता है, ए हार्मोन को रिलैक्सेशन ऑल्सो रिलीज सेक्रेटेड बाय द ओवरी. और ये रिलैक्सेशन हार्मोन होता है, किससे सेक्रेटेड होता है, ओवरी से सेक्रेटेड होता है. आप लोग याद रखिए कौन सा हार्मोन किससे सेक्रेटेड होता है और उसका क्या फंक्शन है, ये एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है. चलिए आगे देखते हैं. लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सेशन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और जो ये HCG, HPL और रिलैक्सेशन हार्मोन होता है वो मतलब वुमेन यानी फीमेल पेरेंट में प्रोड्यूस होता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, में केवल प्रेगनेंसी के समय ही ये प्रोड्यूस होता है. इन एडिशन, और आगे क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, जैसे कि और अदर हार्मोन्स का मतलब जो लेवल होता है, लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, क्रिस्टोल का, प्रोलैक्टिन का, थायरॉक्सिन का, एक्सेट्रा आर इंक्रीजेड. और क्या होता है, इस सब का हार्मोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है. सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड, जो कि मैटरनल ब्लड में फोल्ड हो जाते हैं. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ. और इसमें इनका हार्मोन क्यों ज़्यादा मतलब हो जाता है, इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ. और जो बेबी उसमें ग्रोथ कर रहा है, एम्ब्रियो में ग्रोथ हो रहा है, उसके सपोर्ट में, फीटल ग्रोथ में उसको मदद करते हैं. मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. और मेटाबॉलिक चेंज होता है मदर्स में, मदर का एनाटॉमी में चेंज होता है और उसमें मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. और प्रेगनेंसी की मदद के लिए इस सब का क्या होता है, ये सब हार्मोन का क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, रैपिडली इंक्रीज हो जाता है. चलिए आगे देखते हैं. इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मतलब आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद या इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद
द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट, और जो इनर सेल जो होता है एम्ब्रियो का, वो इनर सेल मास उसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होने लगता है, यानी डिवाइड होने लगता है। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं प्लासेंटा का। यूटेरस क्या होता है, ह्यूमन फोटल टिश्यू विथ इन द यूटेरस। यूटेरस में क्या क्या होता है, फोटल टिश्यू, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। देखिए इसका प्लासेंटा विल्ली होता है, और कैविटी ऑफ यूटेरस, यॉक सैक, एम्ब्रियो और अम्बिकल कोड विथ इट्स वेसल। ये देख लीजिए डेवलपिंग फीटस है, और यही आगे चलकर डेवलप किस में होता है, डेवलप होता है न्यू यंग वन, दैट इज द फिटल एम्ब्रियो डेवलप इनटू द न्यू यंग वन, दैट इज द मेल और फीमेल चाइल्ड। और मेल और फीमेल चाइल्ड कब होता है हम तो बता ही दें, एक्स वाला और एक्स वाई वाला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ आगे क्या था हम लोग का, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होने लगता है इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड इक्टोडर्म। किसमें डिफ्रेंशिएट होता है, आउटर लेयर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म बोलते हैं, और इनर लेयर कॉल्ड इंडोडर्म, और इनर लेयर क्या बोलते हैं, इंडोडर्म बोलते हैं। ए मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, और मेसोडर्म किसमें अपेयर होता है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म में अपेयर होता है, यानी कि उसमें 3 लेयर डेवलप होता है, 3 लेयर होता है, 3 लेयर डेवलप होता है, 3 लेयर डेवलप होता है। कौन कौन होता है, देखिए आउटर लेयर कॉल्ड इक्टोडर्म, ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्टोडर्म बोलेंगे, इक्टोडर्म, और इनर लेयर कॉल्ड इंडोडर्म, और सबसे जो आंतरिक लेयर है इनर लेयर इसको क्या बोलेंगे, इंडोडर्म बोलेंगे। और इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच तुरंत क्या होता है, ये मेसोडर्म, मेसोडर्म जो बीच वाला होता है लेयर, ये डेवलप हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं। गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट, और इसी के कारण क्या होता है, यही तीनों लेयर के कारण क्या होता है, जितना भी बेबी में जो डेवलप हो रहा है फीटल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, ये ऑर्गन डेवलप करता है। इट नीड टू बी मैंशनड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेंट्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टीम सेल्स, और जो इनर सेल मास होता है उसमें क्या होता है, कंटेंट्स बहुत सारे सेल होते हैं, सर्टेन सेल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम सेल बोलते हैं, विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिसमें क्या पोटेंशियल रहता है कि वो न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स को डेवलप कर सकता है। कौन सा सेल, स्टीम सेल। याद रखिएगा इनर सेल क्या कंटेंट करता है, सर्टेन सेल जिसको स्टीम सेल कहते हैं, जिसके पास पोटेंशियल रहती है, उसके पास पोटेंशियल रहता है कि वो नया टिश्यू और ऑर्गन्स डेवलप कर सके। देख लेते हैं, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना समय का होता है, 9 मंथ तक का होता है। चलिए देखते हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, और आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के 1 महीना बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है, जो डेवलपिंग फीटल होता है, उसका क्या होता है, हार्ट इज फॉर्म्ड। उसका मतलब हृदय यानी दिल जिसको बोलते हैं, हार्ट को दिल ही बोलते हैं, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, वो फॉर्म्ड होता है, यानी कि उसमें डेवलप हो जाता है। द फर्स्ट थिंग ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, और हम लोग फर्स्ट थिंग यानी कि मतलब पहला उसका कैसे उसको हम लोग कह सकते हैं कि फीटल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या जीवित है, कैसे डेवलप करते हैं, लिसनिंग हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से देखेंगे, डॉक्टर लोग कान में जो लगाता है स्टेथोस्कोप, उसके लगा करके हम लोग बेबी का हार्ट का साउंड हम लोग सुन सकते हैं। वो फर्स्ट साइन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रोजेनी का। देखते हैं, बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी खत्म होने के तक क्या होता है, फीटस डेवलप इनटू लिम्स एंड डिजीज, और फीटस होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाता है, लिम्स एंड डिजीज में डेवलप हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, यानी कि 12 महीने बाद, 12 मतलब सप्ताह बाद, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 सप्ताह, यानी कि 3 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स लेटर आफ्टर द प्रेगनेंसी, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम्स उसमें फॉर्म्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि द लिम्स, द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप, लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑर्गन्स उसमें अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं। अब देखते हैं, द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, और जो पहला क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ फीटस, और फीटस का पहला मूवमेंट और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, और जो बेबी का जो हेड पर और जो ये बाल उगता है, बाल उगना 5वें मंथ से शुरू हो जाता है। 5वें मंथ में बेबी के सर पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द फीटस एम्ब्रियो, यानी कि इन द प्रेगनेंसी स्टेट, एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्टेट एट द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी स्टेट देयर इज ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन द फीटल एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। आगे देखते हैं, by the end of 24 weeks, that is the 6 month यानी 24 वीक्स बीतने के बाद क्या होता है, यानी 2nd ट्राइमेस्टर हो जाता है, यानी एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होता है और दूसरे में 6 मंथ, यानी 2nd ट्राइमेस्टर के। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, और जो बेबी का जो बॉडी होता है, डेवलपिंग बेबी का जो बेबी बॉडी होता है उसमें फाइन हेयर यानी हेयर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि बाल डेवलप हो जाते हैं। आईलिड्स सेपरेट, और आँख का जो पुट्टी होता है, आँख का जो क्या कहते हैं, आँख होता है जो, वो क्या होता है,
सेपरेट हो जाते हैं एंड आइलिसेस आर फॉर्म्ड, और आइलिसेस उसमें फॉर्म्ड हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और 9 मंथ खत्म होने के बाद द फिटस इज फुल्ली डेवलप। फिटस क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। एंड आफ्टर द 9 मंथ्स फिटस गॉट डिलीवर्ड। एंड हम लोग डिलीवरी मंथ कितना होता है, 9 मंथ बाद हो जाता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। The period the time interval at which the developing embryo develop into fetal, and after its fully developed stage and it called delivery, then this time duration is called the parturition. And during the parturitions, and there is a lactation process takes place. Now later we will discuss these topics in the next lesson. Now enough that today is enough for these topics. And now thanks for watching my videos, and if you are new my channel, then please like, subscribe, and press the bell icon that you will get notification. And today we had already completed that whatever we had studied. Male reproductive system has completed, female completed, gametogenesis completed, menstruation cycle, fertilization, implantation completed, and pregnancy and embryonic development is also completed today. And later we will tomorrow discuss the parturition and lactations, and then after we will discuss the notes of this chapter, and then we will discuss the question answers, that is whatever is the exercises given in this chapter. So thanks for watching my videos. If you are new my channel, please like, share, and subscribe my channel to be updated that whenever I upload my videos, then you will get notification and you will never miss my class. Thanks for watching my videos. That's all.